देर रात एक किसान के घर पहुंचे सीएम चन्नी। चूल्हे के कोल बैठ के खाधी मक्की की रोटी ते सरों दा साग। मासूम बच्ची दिलरोज के घरदियां नाल मनीषा गुलाटी ने की मुलाकात। संयुक्त किसान मोर्चे की अहम मीटिंग। मोर्चे नूं लैके हो सकता है वड्डा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की महिला शक्तिकरण मुहिम की शुरुआत। सरकार बनन ते पंजाबियों की कबड्डी खेड नूं फिर मुड़ तो सिखरां ते पहुंचावांगा सुखबीर बादल। संसद च गूंजिया शहीद किसानां दा मुद्दा। राहुल ने कहा पीएम दवे हुण मुआवजा। एक बार कोरोना की चपेट च आए लोगों को जल्द शिकार बनाउंदा है ओमिक्रॉन। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन विज्ञानी अफसाना खान ने सोशल मीडिया ते शेयर किए सिद्धू मूसेवाला ते विवेक ओबरॉय नाल कीती वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट। 3 मिनट की जूम कॉल ते सीईओ ने अचानक कढ़े 900 कर्मचारी। रोजी रोटी दे पा दिते लाले। किसानां दी मीटिंग च पहुंची अमित शाह की चिट्ठी। जल्द हो सकता है खत्म अंदोलन। पीएम मोदी नूं मिले रूस के राष्ट्रपति पुतिन। कहा भारत साडा दोस्त अते उभर रही शक्ति। देर रात एक किसान के घर पहुंचे सीएम चन्नी। चूल्हे के कोल बैठ के खाधी मक्की की रोटी ते सरों दा साग। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡ ਖੁਵਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਲ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੇ 9/9 ਹੋ ਜਾਣਾ। नहीं उम्र तो नहीं गई कोई ज्यादा पर सानू फिर रोटी पानी का जी मुश्किल बने उन्होंने आ जी कुड़ी उठती तड़के चाह चू फड़ा सानू ते आ जी तुहानू दसिया ते झाड़ू झूड़ू भी कम बड़ा पढ़ाई का बड़ा पढ़ाई का बहुत ज्यादा ਬਣਾ ਦੇਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾ ਦੇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਚੀ ਚੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਚ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤੇ ਥੇ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਮਾਸੀ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾ ਦੂਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਆਪ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਈ। ਫੇਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੀ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਹੀ ਜੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਫੋਟੋ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲ ਸੌਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਰੇ ਆਹ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਗਰਮੀ ਲਿਆ ਉਸੇ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਦਾਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈੜ ਕੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਂ ਫਿਰ ਬਲਦ ਬਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਦੇਖਾ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦੂ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਪਾਇਓ। ਦਾਲ ਖੰਡ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਗੁੜ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਭਰਤੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। इस तरीके दे नाल एक छोटी जी बच्ची दी जान सजा मिल के रहेगी। बहुत इस दुख तो ऊपर कुछ नहीं हैगा। मैं पूरे पंजाब ਨੂੰ अपील करना चाहनी हां कि अपनी अरदास ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ। देखो, एक परिवार दी शांति एक मां को जिंदा लाश बना के रखता है उस उल्टा औरत ने। हाँ, अरदास है, अपील है पूरे पंजाब की। अपने मेरे को तो शब्द नहीं हैगे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हैगी कि मैं किना शब्दां च इस मां दा दुख नू बयान करा। मैम की लगदे समाज दी ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ महज कुछ चीज़ा करके इस तरीके की वारदात, वो भी एक महिला जो खुद भी माँ है, इस तरीके की जो चीज़ा करेगी तो तुहानू की लगता है क्या तस्वीर है आज जो साडे समाज दे विच बनदी जा रही है? मैं अमन बार बार एक गल कहनी हाँ कि इस अज तुसी लोकां दे दिल दा भेद नहीं पा सकदे। इस परिवार विच इन्ना कुछ सुकून सी, जिस तरह उनके फादर दस रहे ने कि मेरे 2 बच्चे, एक मेरी बेटी एक बेटा, साडे घर बहुत सुख शांति सी। उस इस घर दी शांति लुट के लै गई है। छोटा जा परिवार और देखो मां दा हाल की होया पिया, बिस्तर ते निढाल पई हुई है। पता नहीं हुण रब इनू वाहिगुरू इनू इन्नी स्ट्रेंथ दे कि यह मजबूत हो सके, स्ट्रोंग हो चुके कि ताकू पंजाब विच कल नू कोई होर दिल रोज ना बन सके। दूसरी एक अपील करदी हां कि जल्द तो जल्द इस, मैं अपने लुधियाना दे सीपी नाल भी गल करांगी, सीपी साहब नाल, कि जल्द तो जल्द इनदा चलान पेश किया जाए और इनदे ते फटाफट, बड़ा ही रेयर और बड़ा ही घिनौना काम में एग्जाम्पल सैट होना चाहिए पूरे पंजाब ਲਈ कि ताकि कल ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕੇ। मैम ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਣ ਜਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਪੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। जिस तरह दस रहे ने कि उस तरह रूह कम रोंगटे खड़े करने वाली कि किस तरह बच्चे दे मुंह च उनके दादा जी दस रहे ने कि रेता पाके उनका साह रोकया गया। ये फोटो दिखा रहे ने कि किस तरह उन्हें इट्टा मारियां, छोटी जी मासूम दे सिर च इट्टा मारियां। ते ये रेयर मामला ही है, रेयर और बड़ा घिनौना। मैं पहली बार एक एहो जी देखो मैटर दे बारे सुन रही हूं, किस तरह उन्हें बच्ची दे सिर ते इट्टा मारियां ने। ये परिवार किस तरह निकलेगा? ऊपर वाले तो इलावा, गुरु तो इलावा इन्हों कोई हिम्मत नहीं दे सकता। पर जिहड़ी उन्होंने सजा मिलेगी वो किते ना किते इस मां नू थोड़ा जा अपनी बच्ची तो दर्द तो नहीं बाहर कढ़ सकता, पर किते ना किते परिवार नू एक होएगा कि इस उस दरिंदगी दी उन्होंने सजा मिली है। ते तत्काल इंदे ते इमीडिएटली इस औरत नू फटाफट इंदे ते कार्रवाई कर देनी चाहिए है। उम्मीद है आपां पूरी पैरवाई करांगे। मैं भरोसा दिलानी हां इस परिवार नू कि आपां पूरी पैरवाई करांगे कि जल्द तो जल्द मेरी पूरी नजर रहेगी इस मामले ते। आपां लिखांगे, कमिश्नर नू भी लिखांगे, कोर्ट नू भी लिखांगे आपां। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੂਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें 5 मेंबरी कमेटी का जो है वो नियुक्ति की गई थी कि केंद्र सरकार से कोई भी बात करनी होगी या केंद्र सरकार को कोई भी बात करनी होगी तो वो इस 5 मेंबरी कमेटी से कर सकती है। जो बचे हुए मुद्दे हैं जैसे एमएसपी पे कमेटी बनानी है, कैसे बनेगी, कब तक वो रिपोर्ट देगी, या जो शहीद हुए हैं उनका मुआवजा, उनको नौकरी, या जो किसान आंदोलन में सहयोगी रहे हैं जैसे एनआरआई हैं या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया या कईयों के वैसे रेड की गई है कई एजेंसियों ने, तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया गया था ताकि आपस का तालमेल आसान हो जाए। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। और कल जो है वो हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो आज हमारी 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग भी थी। उसके बाद जो 9 मेंबरी कमेटी है उसको भी बुला लिया गया था ताकि एक पारदर्शी बात हो जाए। और उसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है। और कल की मीटिंग में जो कल की एसकेएम की मीटिंग है उसमें अगले कार्यक्रम का हमारा निर्णय ले लिया जाएगा। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कल की मीटिंग में जो है वो फैसला सभी की सहमति से ले लिया जाएगा। जो अभी तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, इसलिए हमें जो कल की मीटिंग है उसमें हम जो है वो अगला आंदोलन कैसे लड़ें, अगला हमारा कदम आंदोलन में क्या हो, इसका फैसला कल की मीटिंग में ले लिया जाएगा। जी सर 2 सवाल है। एक बार सारे बोल लें। ये विषय तो आ गया है जो आना चाहिए था कि कमेटी, सरकार की इच्छा थी, मंशा थी कमेटी छोटी हो, उसका गठन कर दिया गया और अपेक्षा ये थी कि सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी, तो अभी तक कोई संदेश आया नहीं है। तो बहुत ज्यादा कुछ विषय नहीं है। कल जो बैठक होगी उसमें आगामी रणनीति आंदोलन की, वो आंदोलन अभी हमारा जारी रहेगा और कल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पत्रकार साथियों, आज जैसे कि कहा गया संयुक्त किसान मोर्चे के 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में हुई। उसके बाद में 9 मेंबरी कमेटी की भी मीटिंग हुई और 4 दिसंबर को जो 5 मेंबरी कमेटी इस संयुक्त किसान मोर्चा ने तय की थी, हमारी ये उम्मीद थी कि इसके बारे में कुछ बात आगे बढ़ेगी। 1 साल के बहुत बड़े आंदोलन के बाद, ऐतिहासिक आंदोलन के बाद सरकार को ये तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़े। ये हमारे पूरे भारत के किसानों की एक जबरदस्त जीत हुई है। लेकिन कुछ जो बाकी मसले थे, इन मसलों के ऊपर सरकार के साथ वार्ता हो और वो भी मसले तय हो जाए, इसीलिए ये 5 मेंबरी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा ने तय की थी। उसमें एमएसपी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पूरे भारत के किसानों के लिए। बिजली बिल को वापस लेने का सवाल है। ये तो सिर्फ किसानों के लिए नहीं लेकिन पूरे जनता के लिए, क्योंकि उनके बिजली दर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगे, वो एक मामला है। पराली के अंदर किसानों को सताने वाला मामला वो है। लेकिन और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इस आंदोलन से निर्माण हुए जो मसले हैं, हमारे हजारों किसानों के ऊपर
चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और पूरे देश के अंदर हजारों ऐसे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले गए हैं पिछले 1 साल में। इनको किसी भी हालत में वापस लेना चाहिए और जो हमारे 700 से ज्यादा शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए और उनका परिवारों का पुनर्वसन करना चाहिए। इन सवालों के ऊपर सरकार के साथ चर्चा अपेक्षित थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 दिन में इसके बारे में सरकार ने कोई अगवानी की नहीं है। तो कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, इसमें इस आंदोलन को ज्यादा तेज करने के दिशा में योग्य वो निर्णय ये कल संयुक्त किसान मोर्चा ये जरूर लेगा। सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस आंदोलन खत्म हुआ। अगर ये मामले नहीं छूटे तो इस आंदोलन जारी रहेगा और ज्यादा तेज किया जाएगा। कल के एसकेएम के मीटिंग में उसके बारे में निर्णय लिए जाएंगे। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे देश से आए मार्च किया जाएगा। उस तो बाद एक डेट भी तय कर ली ਸੀ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ तक संसद चल रही है। देखिए, जब सरकार ने 3 कानून वापस लिए उसके पहले हमने फैसला कर चुके थे कि हम संसद कुछ करेंगे और सरकार अगर 2 कदम पीछे हटी है तो हमने भी अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया कि हमें भी सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए और हमें भी थोड़ी ढील उस पर दे देनी चाहिए। अगर सरकार पटरी पे आती है तो हम कोई ज़्यादा उसमें आगे बढ़ के काम ना करें, हम भी 2 कदम पीछे हटें। सैद्धांतिक तौर पे, इंसानियत तौर पे हमने भी अपना प्रोग्राम जो है वो स्थगित कर दिया था और तब से लेके 19 तारीख से लेके जो हमारे गिराव उनमें भी हमने ढील दे रखी है, बहुत कम हमने कर दिए हैं। लेकिन अब जो बात थी, जो बचे हुए मुद्दे थे, वैसे तो जैसे युद्धवीर जी ने कहा है कि अगर सरकार उसी वक्त बातचीत करके मामले को निपटाती तो ये सारे मैटर जो बचे हुए हैं ये पहले दिन ही निपट जाने चाहिए थे। क्योंकि जैसे मुकदमे हैं, किसी भी आंदोलन में आप देखिए मुकदमे आंदोलन के फैसले के साथ ही वापस लेने हैं। जैसे एमएसपी का मुद्दा है, अगर उसी दिन बात होती तो उसी दिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बुरा उसमें निकल के आ सकता था। जैसे और बीच के मुआवजे की बात है, जो भी है, ये एक ही दिन में सारी घोषणा की होनी चाहिए, इसकी 10 बार में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बीच में जैसे जैसे टाइम आया वैसे वैसे हमने उसमें 29 तारीख को उसको टाल दिया और उसके बाद 6 तारीख का था और 6 तारीख को फिर हमने सोचा कि नहीं अभी बात पेंडिंग है, शायद सरकार बुला लेगी। लेकिन अब नहीं बुलाती तो कल की जो मीटिंग है उसमें यह फैसला दिल्ली में जाने का वापिस फिर हो सकता है, लेकिन सबकी सहमति से। आज तक की जो बात हुई है, हो सकता है कि रात को कोई और नई बात आ जाए, तो इस सारी बात पे कल विचार होगा और कल पूरे एसकेएम की मीटिंग में फिर कोई पारदर्शी फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक हम आपको बता देते हैं कि हमारे जितने भी जो प्रोग्राम थे, चाहे वो काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था, चाहे वो मिशन यूपी का प्रोग्राम था, चाहे वो संसद पूछ के प्रोग्राम थे, वो अब तक स्थगित है जब तक हमारी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सरकार करनी बंद कर देती है तो जैसे कि फिर चालू हो जाएगी। लगता है कि 2 दिन की मीटिंग नहीं हो रही, कमेटी बन गई है, तरीके में गलबात बंद है। इसीलिए तो कल मीटिंग करेंगे ना, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर सरकार ने नहीं बुलाया तो कल की मीटिंग में अगला फैसला लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ है जी हाले तक? नहीं, वो बात जो हरियाणा सरकार से चली थी वो बात सिरे नहीं चढ़ी, वो बीच में ही रहेगी। उसमें भी यही मुद्दे थे कि जो शहीद हुए उनको मुआवजा मिले, उनके आश्रितों को नौकरी मिले और जो उसके आंदोलन के सहयोगी लोग हैं उन पर अगर किसी ने कार्रवाई की है वो वापिस हो। जैसे असले के लाइसेंस है उनको सरकार ने नोटिस दे दिए हैं और इस तरह से कई और भी हो सकते हैं, तो उसके लिए
बातचीत के लिए बुलाए थे। बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन सिरे नहीं चढ़ी है वो बातचीत में। देखिए, कुल मिला के ये है कि वो बात सिरे नहीं चढ़ेगी। अब एक की बात क्या कहें, लेकिन हरियाणा सरकार के तहत, हरियाणा सरकार के अंडर जो फैसले थे वो सिरे नहीं चढ़े, वो बीच में लटक गए। और हमें उम्मीद थी कि शायद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की महिला शक्तिकरण मुहिम की शुरुआत। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ महिला सशक्तिकरण मुहिम की शुरुआत करके। पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हाथ खड़े करके बता देना। दिल्ली जैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दिल्ली के सरकारी अस्पताल पहले बहुत खराब थे। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, दवाई की खिड़की नहीं खुलती थी, जितनी डिस्पेंसरी है उनमें ताला लगा रहता था, डॉक्टर अस्पताल में आते नहीं थे, अस्पताल की एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन कोई काम नहीं करती थी। आज आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशनड कर दिए, शानदार कर दिए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल कर दिए। और दिल्ली के हर आदमी का इलाज फ्री कर दिया। अगर आपको घर में कोई भी बीमार होता है, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे एक क्रोसिन की टेबलेट लेनी हो, चाहे 70-80 लाख का ऑपरेशन कराना हो, सारा इलाज मुफ्त है। सारे दिल्ली के लोगों के लिए पूरा इलाज मुफ्त है। आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के अस्पताल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? पंजाब के हर पिंड में क्लिनिक खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? पंजाब के हर बच्चे का, हर माँ का, हर बेटी का, हर बाप का, हर भाई का इलाज मुफ्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरा इलाज मुफ्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में करा ऐसे पंजाब में भी करेगी। हमने करके दिखाया है। हम हवा में बात नहीं कर रहे, मैं कभी हवा में बात नहीं करता, मैं करके आया हूं दिल्ली में। हमें करना आता है, पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली में पहले बिजली बड़ी महंगी थी, जैसे पंजाब में महंगी है। हजारों रुपए के बिल आते थे लोगों के, छोटे छोटे घरों के। एक घर में एक बल्ब, एक पंखा, 2-4 चीजें और है, उनका 10-10 हजार रुपए का बिल आता था, 5-5 हजार रुपए का बिल आता था। लोग बड़े दुखी थे। आज दिल्ली में लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है। लोगों की बिजली मुफ्त कर दी। होनी चाहिए पंजाब में बिजली मुफ्त की नहीं होनी चाहिए? ये सारे मेरे को गालियां कढ़ रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त खोरी कर रहा है। होनी चाहिए मुफ्त खोरी नहीं होनी चाहिए? ये टीवी चैनल वाले दिखा दो, हाथ खड़े कर दो, ये टीवी चैनल में दिखा देंगे। दिखा दो जरा, कैमरे मोड़ के दिखा दो, सबको बिजली मुफ्त चाहिए। बिजली मुफ्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिजली मुफ्त भी देंगे, बिजली मुफ्त भी देंगे और 24 घंटे भी देंगे। अभी बिजली के पावर कट लगते हैं, लगते नहीं लगते, 7-7, 8-8 घंटे के दिल्ली में पावर कट लगते थे पहले। पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, मुफ्त में बिजली आती है। पंजाब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो जैसे दिल्ली में करके आए हैं ऐसे पंजाब में भी करेंगे। हमें करना आता है। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐलान करा, मैंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हम हजार रुपए हर महीने देंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को 1000 मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं, एक मां है, एक बीवी है, तो 5 को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए। आदमी भी हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए। आपके घर के महिलाओं को नहीं देने चाहिए?
मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। ये इतनी गालियां कढ़ रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां कर, मैंने सोचा कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं चाहता हूं अगर कुछ महिलाएं बता दे कि अगर उनको 1000 रुपए मिलेंगे तो वो क्या करेंगी उस 1000 रुपए से। माइक है यहाँ पे किसी के पास? आप 1000 रुपए अगर आपको मिलेंगे आप क्या करोगे 1000 रुपए से? ये मेरे को बोले, जब से मैंने बोला, मैंने कहा मैं 1000 रुपए दूंगा, चन्नी साहब बोले ये केजरीवाल काला है, ये उल्टी सीधी बातें करता है। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जितनी मेरी माँ बैठी हैं, मैं सारी माओं से पूछना चाहता हूं, आपको काला बेटा पसंद है नहीं पसंद? केजरीवाल पसंद है, फिर ठीक है। मैं यहां मेरी बहनें बैठी हैं, आपको काला भाई पसंद है नहीं पसंद? पसंद है। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। मेरी नीयत साफ है, मैं काला हूं, मेरी नीयत साफ है। फिर चन्नी साहब बोले केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन जिस दिन 1000 रुपए मिलने के बाद ये मेरी सारी माँ बहनें अपने लिए सूट खरीद के लाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको 1000 रुपए मिले, मेरी विनती है सारे जने अपने अपने लिए एक नया सूट खरीद के लाना और चन्नी साहब को कहना हमारे काले भाई ने दिलवाया एक नया सूट हम लोगों को। आज मुझे बड़ी खुशी है, सराय खास गांव से ये महिलाओं के लिए जो 1000 रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जिस महिला, जो महिला कहेगी मुझे 1000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सरकार बनने के बाद उन सब महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा। जैसा भी भगवंत मान ने कहा, ये कैप्टन का कार्ड नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। कैप्टन का कार्ड मत समझना, जो पिछली बार उन्होंने रोजगार कार्ड दिया था। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं मैं सोच समझ के कहता हूं, लेकिन जो कहता हूं मैं करता हूं। तो सारी आज यहां से शुरू हो रहा है, पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अगले कुछ दिन के अंदर हम घर घर भी जाएंगे, हर घर के अंदर जाएंगे। वो बोलना चाह हाँ, वो बताना चाह रही है कि 1000 रुपए मिलेंगे तो क्या करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ और बहुत तमन्ना थी कि आपको मिलूं। आज वो टाइम आ गया, मोस्ट वेलकम। और सर, चन्नी सर कह रहे हैं 1000 रुपया लेके महिलाएं भिखारी बन रही हैं। सर, ये लोग करोड़ों रुपए इतना कुछ खा गए, जे भिखारी नहीं बने, तो हम लेडीज कैसे बन गई? सर, जे आज हम लेडीज दिखाएंगे कि आज पंजाब में केजरीवाल की सरकार आएगी और लेडीज ये लेके आएंगी, इनको ये हम तमाचा मार के दिखाएंगे और हम ये दिखाएंगे 1000 से औरतें भिखारी नहीं होती। जे इसने हमें एक बहुत बड़ा शिक्षा दी है कि हम कैसे इनको जवाब देना है। ये लेडी जो आई है, ये सरकार बना के पंजाब को आजाद करेंगी इन लोगों से। केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। और भी कोई बोलना चाहते हैं? चन्नी साहब ये भी कह रहे हैं 1000 रुपए दे दिए तो कामचोर हो जाएंगी औरतें, काम नहीं करेंगी औरतें। सत श्री अकाल श्री केजरीवाल जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੌਖਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭੁਚਾਲ ਮਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ, ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟੌਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਹਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ TRP ਰੇਟਿੰਗਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ 3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰ ਚੁਣ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੀਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, 4-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲੀਵੇਟਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਪਤਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਲੱਡ ਲਿਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ
कबड्डी प्लेयरां की रजिस्ट्रेशन पंजाब सरकार करेगी। ਜਿਹੜੇ कबड्डी प्लेयर है ਜਿਹੜੇ पंजाब कप हिस्सा लेंगे तो मतलब वो डिस्ट्रिक्ट की टीम च होंगे, वो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट की टीम पंजाब की होगी, ਉਹਦੀ रजिस्ट्रेशन होगी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ A B C। ਜਿਹੜਾ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, B ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਵੇਂ C ਹੈ, C ਤੋਂ ਉੱਤੇ B ਚੱਲ ਸਕਦਾ, B ਤੋਂ ਅੱਗੇ A ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो जेड़े कबड्डी तो रिटायर होंगे एक कैटेगरी प्लेयर, उन्होंने असी पंजाब गवर्नमेंट कोच रखी जाऊगी, उन्होंने सो दैट वो अगे कोचिंग दे विच आउण। आ गेम आपां मेरी तो कोशिश होगी इस गेम नूं मैं नाल दे सूबियां च भी लैके जावां। हरियाणे च जा सकदी है, दूजे कई सूबे राजस्थान च भी आपां वाड़ सकदे कि मेरी तो जी एम आई है कि पूरे जिवें अपनी दूजी स्टाइल इंडिया स्टाइल कबड्डी ते पंजाब स्टाइल सर्कस स्टाइल हले पूरे है नहीं, हौली हौली मैं अगले 5 साल में कोशिश करूंगा पूरे इंडिया जिवें आपां बाहरले सो जिन्हें आप रिकगनाइज करके एक बार रिकगनाइज होगी स्टेट ने तो रिकगनाइज दूजे सूबे तो भी रिकगनाइज करानी, आ मेरा एक निशाना है। ते जेड़े ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ 100% ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 100%। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਏਪੀ ਗਿਆ ਤੇ 올림픽ਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ 올림픽 ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ 올림픽 ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 올림픽ਸ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਂ 400 ਰੀਲੇ ਮੈਂ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 올림픽ਸ ਦੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਜੌਬ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मैं तुम इन्ना दस देना, मैं 15 गेम्स चूज करनी पंजाब दियां ते मैं 15 ते कॉन्सनट्रेट करना है। अगले ओलंपिक्स में कोशिश करूंगा वध तो वध टीम्स दे मैंबर इंडियन टीम दे पंजाब तो जान ते मैच भावें इंटरनेशनल कोचेस की लोड़ पए, भावें कई सारा असीं पंजाब सरकार तो करांगे। मैं स्पोर्ट्स स्कूल भी खोले सी, कोई 10 स्पोर्ट्स स्कूल खोले, बहुत वधिया चल रहा सी, पर इन्होंने आनसर बंद करता। मेरे प्लान से कि हर डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाए कि टैलेंट थल्लों आए, पर पिछले 5 साल इन्होंने बंद ही करते सारे। मैं तो बड़ी कोशिश की कि गेम चले, मैं असैंबली भी रौला पाया सी पहली बार, मैं क्या वर्ल्ड कप कराया तो करो, घट तो घट हौसला तो मिले, पर यह नीयत ही नहीं इन्हों की। तुसीं देखो किन्ने मैं स्टेडियम बनाए पंजाब पर इन्हों की कोई नीयत नहीं है। तो इस करके खास करके कबड्डी तो मैं दिलों लगाया है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ,
ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲਾ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ तो हर प्लेयर ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਚ ਮੈਂ ਏ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਏ ਚ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। तो इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं जो कहना दिलों कहना, क्योंकि मेरा दिल सी, मैं मलूका साहब ਨੂੰ मैं गल की, मैं क्या यार मैनू जी करता कबड्डी प्लेयर नाल मैं अपनी दिल की गल करा। ते ਤੁਹਾਨੂੰ याद ना छोटी छोटी चीज़ां कीतियां सी, आ जिहड़े जानवरां दा शौक, घोड़ियां दा शौक किते सीगा पिंडां, मैं शुरू की और मेले लाने, कंपीटिशन करानी, ते अज आ देखो किन्ने पिंडां 'च अपने नौजवान मुंडियां ने घोड़े रख ले। ते मैं तुहानूं होर दसदा, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਐਮ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ हुआ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਮਿਕਰੋਨ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਏਂਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੈਰੀਏਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਰੀਏਂਟ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਓਮਿਕਰੋਨ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਢੇ 900 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲੇ। Thank you for joining. I come to you with not great news. The market has changed, as you know, and we have to move with it in order to survive, so that hopefully we can continue to thrive and deliver on a mission. This isn't news that you're going to want to hear, but ultimately it was my decision, and I wanted you to hear from me. It's been a really, really challenging decision to make. This is the second time in my career I'm doing this, and I do not want to do this. The last time I did it, I cried. This time I hope to be stronger. But we are laying off about 15% of the company. You gotta the market, be kidding me. Efficiency and performances and productivity. All we did for the company? If you're on this call, you are part of the unlucky group being laid off. Your employment here is terminated effective immediately. What does this mean for what's next? You're going to get an email from HR, askhr@better.com, and your benefits. For all U.S. employees, we're This providing is 4 not weeks real. Oh my God, of I severance. can't believe this. 1 month of full benefits, and 2 months of COBRA, for which we will pay the premium. So 3 months total benefits if you elect for COBRA. This is not real. Oh, Thank you for each this and is every one gonna of be your happening. individual contributions to Better. I wish the news was different. I wish we were thriving I can't believe enthusiastically this. as we were at the beginning of this year. That's not the case. And I am sure you will leave us and This is not be real. more successful, more fortunate, After all we did. luckier in your next endeavor. I wish you all the best of luck. Thank you for everything you've done for Better. Thank you. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਮ ਅੰਦੋਲਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा,
उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर, भारतीय सेना को नागालैंड के मोन जिले के तिजिक क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/21 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में अम्बुश लगाया था।
रूस के स्थान के समीप पहुंचा एवं उसे रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्होंने सेना द्वारा इलाज के हेतु नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया, उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, माली जवान की बयान के अलावा कई अन्य घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के सुरक्षा बलों की गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई, कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया है। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। तिजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त घटना के पश्चात 5/12 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के भवनों में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ से तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ, ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ व्लादिमीर ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Dear Prime Minister, dear friends, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии. Unfortunately, we had to skip last year because of the pandemic. Но все равно наша очередь приезжать в Индию, я благодарю вас за приглашение. Still, it is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. The relations between our countries are developing and are looking into the future. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 лишним процентов, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38%. Last year, the trade has decreased by 17%. This year, in the first 9 months of this year, we see an increase by 38%. И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали. And naturally, we have every opportunity to reach the levels of trade that you have spoken before. Это касается и инвестиционной деятельности. And the same applies to investments. Сейчас 38 миллиардов, примерно равно распределяется, чуть больше инвестиций с российской стороны. Right now, the mutual investment stands at about 38 billion, with a bit more investments coming from the Russian side. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях. We are truly cooperating and working on very important and promising matters. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. That applies to the energy sector and high tech, including space. И уверен, что здесь программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. And I think that the programs that we will be discussing here today will be implemented fully, including the training of Indian spacemen cosmonauts. Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем с одним нашим партнером. We also cooperate greatly in military and technical sphere, like with no other country. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии.